like to say Om Namah Shivaya, Shiv Ji Sada Sahai, Om Namah Shivaya, Guru Ji Sada Sahai. गुरु जी, मेरी यही अरदास है कि आज मैं पहली बार इतना बड़ा सत्संग कर रही हूँ. I've never shared my life with anybody, but I'm sharing it today. गुरु जी, आप मेरे साथ ही रहना, आप ही मुझे गाइड करो. जो भी कहना है, अगर मैं कुछ गलत कहूँ तो मुझे माफ करना. जो आप चाहते हो, I would say everything, whatever you want me to say, whatever you want me to share. संगत जी, मेरी लाइफ आई थिंक जैसे गुरुजी कहते हैं, और मैं जैसे मैंने संगत से भी सुना है कि गुरुजी के साथ हम मिलते तो हैं, हमारा जो रूबरू जो हमारा कनेक्शन होता है, मे बी अभी हुआ, 2 साल पहले हुआ, 3 साल पहले हुआ, लेकिन गुरुजी हमारे साथ हमेशा से हैं. आई वुड जस्ट go back a little bit with my life. It was in 1994. 5:30 बजे थे सुबह के on 2nd of July. When I wake up, I was in a very dark tunnel. जैसे कि मैं बहुत अंधेरी टनल में चली गई और एक लाइट थी. जैसे ही मेरी नींद खुलती है, मैं देखती हूँ we are all in a car accident. I'm thrown out of the van, van was driving at 85. My husband and my daughter, like we had a very tragic accident. I guess Guruji ने मुझे, I saw the death and Guruji sent me back. उस टाइम पे गुरुजी थे, I guess he was in a different form which came to me, जो कि हमें नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि गुरुजी है, but now if I realize it, yes, he was there with me. उन्होंने मुझे, we went through hell. हमारे एक्सीडेंट के अंदर we were all scattered, we were all into different places, but उस टाइम पे डॉक्टर्स ने मुझे कहा था कि pull out the tubes अपने हस्बैंड की और अपनी डॉटर की. I had no courage. मुझे कुछ भी नहीं पता था what's happening with my daughter and what's happening with my husband. मेरी बेटी के लिए by the time मैंने ट्यूब्स पुल करने की सोची, it was too late. She started breathing on her own. मेरे हस्बैंड के लिए before even they let me see him, because he was in a different hospital, they wanted me to take a decision. It was a whole panel of doctors. I went. जब मैं संजीव को देखने के लिए गई हॉस्पिटल में, he was in ICU, he was in a rotating bed. I saw him. I think उस टाइम गुरुजी ने मेरे माइंड पे ब्लॉक कर दिया था या क्या किया था, मुझे कुछ भी नहीं पता क्या हो रहा था. I saw him. I told the doctors कि he has to live. So they said he'll be on a ventilator all his life. He'll be neck down paralyzed. He will be on oxygen, but you will have to let him go. Because you already have a handicapped daughter, traumatic head injury, जिसकी बेटी की हुई थी, they had to remove her both her frontal lobes. So I said, no, I will take him home. So they said, you cannot take care of 2 sick patients. I came out, संगत जी, उस टाइम पे तो मैंने बहुत हिम्मत करके, I don't know कहाँ से गुरुजी ने मुझे हिम्मत दी थी उस टाइम पे. I came in the corridor and I started screaming. उस टाइम पे मैंने गुरुजी को हाथ जोड़ा था, भगवान को. But उस like before even I saw संजीव, I think मेरे पास साईं सच्चरिता पहुंच गई थी. साईं बाबा के रूप में गुरुजी ने मेरे पास साईं सच्चरिता भेजी थी, which I had started reading already a week before. जब मैं बाहर आई and I started screaming and I started crying, howling, and तब मैंने गुरुजी को ऊपर हाथ जोड़ के बोला था कि गुरुजी, not I didn't say गुरुजी, उस टाइम मैं बाबा पे विश्वास करती थी और माता रानी पे, तो मैंने हाथ जोड़ के बोला था, बाबा इस आदमी को, मेरे हस्बैंड को, I was just 27 years old, उस टाइम पे I was very young, तो मैंने हाथ जोड़ के बोलता, बाबा मैं इस आदमी की, I'll clean his body, I'll clean everything, मैं इस आदमी का सारी उम्र ध्यान रखने को तैयार हूँ, बट इस बंदे को छोड़ दे मेरे लिए, क्योंकि I just could not imagine my life without him. And अगर तेरे को कुछ ले जाना तो मेरे बच्चे ले जा, लेकिन मेरे हस्बैंड को छोड़ दे. I will take care of him and I promise I'll take him home. I guess बाबा ने मेरी सुन ली थी. संजीव started, he wasn't recovering. It was a very, very hard journey. My parents were with me. I think मेरा support मिला, but मेरे को, he was with me. I felt there was a power. उस टाइम पे बाबा के रूप में थे. मैं दिन रात सिर्फ साईं सच्चरिता पढ़ती थी. 1 दिन में कंप्लीट करती थी पूरी. फिर मैं कई बार 3 दिन में कंप्लीट करती थी. Like that was the only thing I had. That was only support I had. मुझे ऐसा लगता था कि मेरे जिंदगी में कोई नहीं है सिवाय साईं सच्चरिता के, साईं बाबा के. जो कुछ भी होता था मेरे साथ, थर्सडे को ही होता था. संजीव had surgeries, Shreya had surgeries, everybody had surgeries, but
सब कुछ थर्सडे को ही होता था। हम मूव भी कर रहे थे, वी वर इन वर्जीनिया, सो वहां से जब हम, आई यूज्ड टू लिव इन न्यूयॉर्क एंड वी वर ट्रैवलिंग टू वर्जीनिया, दैट्स व्हेन वी हैड द एक्सीडेंट। जब हम न्यूयॉर्क भी मूव करे तो तब भी हम, इट वाज थर्सडे ओनली। तब मैं संजीव को बोला करती थी कि संजीव, जब तुम ठीक हो जाओगे ना, विल गो टू शिरडी बाबा। आई थिंक गुरुजी ने मेरे माइंड में ब्लॉक डाल दिया था कि जो भी हो रहा है, just keep doing your duties. I was just doing my duties. I didn't even think about anything else. मुझे ऐसे लगता था कि it was nothing. मेरी लाइफ में कुछ नहीं है. I just have to keep on doing what I was doing. He was there with me. I just felt कि मेरे साथ जैसे होता है ना कि there was a protection with me all the time. And my life kept on going. I had obstacles. But ये था कि yes, I would add one thing कि जैसे कहते हैं कि गुरुजी तुम्हें नींबू की तरह निचोड़ देते हैं। यस, उन्होंने मुझे भी नींबू की तरह ऐसे निचोड़ा था कि आई कैंट इवन एक्सप्लेन। बट उसका भी, एंड देन आई रियलाइज लेटर, आई थिंक आई वाज रीडिंग साइंस चरिता, उसके अंदर से बाबा, गुरुजी ने मुझे बाबा के थ्रू ही मुझे लेसन्स दे रहे थे। आई थिंक कि आई डिडंट ब्लेम एनीबॉडी, क्योंकि जो हमारी गाड़ी चला रही थी लड़की, शी इज द वन who slept on the wheel and we had this accident. Sanjeev was very upset. That's my uncle. He was very upset. मुझे नहीं गुस्सा चढ़ता था। मैं सिर्फ संजीव को यही बोला करती थी, संजीव मे बी मैं बहुत गंदी थी पिछले लाइफ में, मे बी इट्स आवर कर्मास व्हिच आर पेइंग फॉर सम रीजन, आई डोंट नो। आई फेल्ट कि देयर इज सम पावर विद मी कि हु वाज गाइडिंग मी। आई वाज टोटली ब्लैंक, आई वाज डूइंग माय ड्यूटीज, आई वाज डूइंग एवरीथिंग। मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होती थी, मैं बाबा के मंदिर में भागती थी। कुछ सालों तक हमारी जर्नी चलती रही ऐसे, from 94 to 2019. 2019 के, no, 2008 में जाके I had gone to India after 12 years, and I think it was around, गुरुजी ने तब समाधि, उनका फर्स्ट ईयर था, around May I had gone to India। तब मैंने सुना था कि गुरुजी के बारे में कुछ थे, गुरुजी उन्होंने समाधि ली थी, उनका फर्स्ट ईयर था। I think पहली उनकी there was something going on in India at that time, पर मैंने कनेक्ट नहीं किया। मैं बोलती थी पता नहीं लोग क्या गुरु गुरु करते रहते हैं, गुरुजी करते हैं। उस टाइम पे मेरी माफी गुरुजी, मेरे को उस टाइम नहीं पता था, बट गुरुजी ने यस मुझे बहुत नींबू की तरह निचोड़ा। आई वाज, अनदर थिंग वाज कि मैं बिफोर द एक्सीडेंट, विच मुझे कोई उसमें वो नहीं है कि मैं आई एक्सेप्ट माय मिस्टेक गुरुजी, इसमें मेरी गलती थी, क्योंकि मैं बहुत इगोइस्टिक हो गई थी। मेरा एक बेटा था, मेरी बेटी हुई थी, मांग मांग के मैंने बेटी ली थी कि मुझे बेटी चाहिए। वी वर, संजीव हैड अ फार्मेसी, वी वर डूइंग वेरी वेल, एंड आई हैड, मुझे ऐसा लगता था मुझे जिंदगी में किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। बट दिस वाज एन एक्सीडेंट व्हिच ब्रॉट मी डाउन कि नहीं, यू नो व्हाट, दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, यू हैव टू लिव दिस लाइफ। एंड मेरा ईगो खत्म हुआ था, व्हिच आई हैड नो ईगो, नथिंग। उन्होंने बहुत बहुत तरीके से मुझे निचोड़ा, हर प्रॉब्लम आई मुझे, बट मेरे को, he was with me all the time. I had full support of his with me कि अगर मुझे उन्होंने प्रॉब्लम दी भी थी तो वो मेरे साथ थे हमेशा। कुछ मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी, मैं मंदिर भागती थी, मैं प्रे करती थी, बट मेरे साथ थे। He was always with me. 2008 के बाद संजीव started getting sick. He was on and off in the hospital, on and off. 2019 से he became, not 2008 से लेकर 2019 तक he was on and off. We lost him many times, but he used to come back. बस मेरी बाबा से यही, हमेशा मैं मंदिर भागा करती थी कि ठीक कर दो, प्लीज ठीक कर दो। मैं सेवा, सारी उम्र सेवा करने को तैयार हूँ, बट प्लीज प्लीज ठीक कर दो, मेरे बच्चों को ठीक रखो। मुझे ये था कि मेरे बच्चों के साथ, they have their father, he can see his kids grow, his kids can see they have their father's protection. मैंने कभी, मे बी कभी कभी मैं गिल्टी भी फील करती हूँ, जैसे कि मैंने अपने मतलब के लिए बाबा से हाथ जोड़ा था कि नहीं, संजीव को छोड़ दो। Whereas his life is very difficult. He's neck down paralyzed. He cannot move his hands. He's totally dependent on me. I try to do my best to take care of him. कि मुझे जिंदगी में कोई चीज नहीं चाहिए थी। मुझे यही लगता था कि I have no right to complain, क्योंकि भगवान ने मुझे एक हस्बैंड दिया, एक मेरे
2 छोटे-छोटे बच्चे दिए थे, जो कि by Guruji's grace, Shreya had a lot of problems. Shreya had, she still has a lot of multiple problems, but Guruji ने अपना हाथ रखा था. उनका हाथ हमेशा मेरे सिर के ऊपर था, and I feel totally blessed. 2019 गुरुजी के साथ में आई थिंक इन 2015 या 16 के अंदर मेरे इंडिया में बहुत चक्कर लगते थे. वो कुछ ना कुछ हफ्ते के लिए मैं जाती थी, मैं आ जाती थी, साल में एक चक्कर लग जाता था. मेरा फैमिली थी और मुझे लगता था कि दैट वाज माय वेकेशन. आई यूज्ड टू गेट एड फॉर संजीव और मैं एक हफ्ते के लिए इंडिया होके आ जाती थी. बट 2000 एंड ही वाज गेटिंग सिक. मैं जितनी बार भी जाती थी, संजीव यहाँ पे हमेशा बीमार हो जाते थे. ही यूज्ड टू एंड अप इन आईसीयू. सो 2015-16 की बात है, से पहले की बात है. एंड माय बॉय बिलीव्स अ लॉट इन गुरुजी एंड आई बिलीव्ड लॉट इन साईं बाबा उस टाइम पे. तो मैं जब भी जाती थी इंडिया तो मैं बुआ को बोलती थी कि चलो बाहर चलते हैं. तो उनका मंडे एंड थर्सडे का दिन होता था कि उन्होंने गुरुजी के मंदिर जाना होता था और वो बड़ा तैयार श्यार होके शाम को जाते थे. तो आई दे यूज्ड टू से कि नहीं आज हम बिजी हैं, हम तो गुरुजी के जा रहे हैं. एंड गुरुजी मुझे माफ करना अगेन, आई यूज्ड टू मेक फन. आई यूज्ड टू से कि पता नहीं कौन कौन से गुरुओं के चक्रों में पड़ गए हो, मुझे समझ नहीं आती. साईं बाबा हैं, माता रानी है, पता नहीं कौन से गुरुओं के चक्रों में पड़ जाते हैं. शी सेड ऐसे नहीं बोलते अनु, गुरुजी ही इज वेरी गुड. वहां पे जाओ, स्मेल खुशबू आती है एंड इट्स वेरी क्वाइट, वेरी पीसफुल. जाते हो प्रसाद मिलता है एंड यू गेट ब्लेस्ड. चक्रों में पड़े हुए हो. आई डोंट नो, आई डिडंट बिलीव एंड माफ करना गुरुजी अगेन. आई यूज्ड टू, आई देयर वाज नो कनेक्शन. 2015 तक मुझे वो कहती रही, काफी बार बुआ ने बोला चल तू भी चल, बट मेरा कोई ना कोई एक्सक्यूज था. आई गेस गुरुजी डिड नॉट वांट मी टू कम एंड मीट हिम. मंदिर में जाने को मुझे आज्ञा नहीं थी अभी. सो ही वाज 2015-16 के अंदर मैं यहाँ से गई थी इंडिया. एंड माय माफ करना गुरुजी अगर मैं कुछ गलत बोलूँ तो. It was Sanjeev ki family was giving us very hard time about some property papers or something, and I was going through hell. So and Sanjeev यहाँ पे ICU में थे. मैं अपने पेरेंट्स के पास, पापा मम्मी के पास छोड़ के गई थी. So और वहाँ पे मैं रो रही थी कि मैं क्या करूँ. मुझे वापस भी नहीं जाने दे रहे थे वो. एंड इट वाज लाइक अ ब्लैकमेलिंग थिंग गोइंग ऑन कि ये पेपर साइन कर, वो साइन कर, बट मैं नहीं कर रही थी. तो मैंने बुआ को बोला कि आप अपने गुरुजी को क्यों नहीं बोलते, आप तो इतना मानते हो उनको, तो आप क्यों नहीं बोलते अपने गुरुजी को कि जीव को ठीक रखें वो. तो शी सेड कि मैं तो बोलती हूँ, तू भी बोल. तो उस टाइम पे पहली बार आई वुड से कि मैंने गुरुजी को मत्था टेका मंदिर में. मैंने अरदास करी कि गुरुजी मेरे काम कर दो ताकि मैं यहाँ से ठीक ठाक वापस न्यूयॉर्क जाऊं. संजीव आईसीयू में है. मुझे नहीं पता मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, लेकिन मुझे डायरेक्शन दो. आई वॉन्ट यू टू बी विद मी. पहली बार मैंने अरदास करी थी, जो कि गुरुजी को पता था कि जिसका मुझे कोई विश्वास नहीं था गुरुजी के ऊपर, बट स्टिल गुरुजी ने मुझे सुना. मेरे काम हो गए. दिवाली का वीकेंड था, जबकि बैंक्स जल्दी बंद हो जाते हैं, कोई नहीं आता. फटाफट पेपर साइन हो गए, सारा कुछ हो गया. मेरे वहां से चल पड़ी, दिल्ली से चली, फ्लाइट वॉज लेट. लंदन में फ्लाइट डिले हो गई. यहाँ पे they were all waiting for me. My brother picked me up and we went directly to the hospital and Sanjeev was completely unconscious, completely like कहते हैं ना कि he was almost gone. And मैं पूरे रास्ते गुरुजी को मत्था टेकती आई थी. पता नहीं मुझे क्या था, क्या कनेक्शन हो गया था मेरा उनके साथ कि मैं हमेशा उनको भी, साईं बाबा को तो मैं मत्था टेक रही थी, पर मैं गुरुजी को भी अननोइंगली मैं उनको मत्था टेक रही थी कि प्लीज आपने मेरे काम कराए, आप संजीव को भी ठीक रखो. मैं पहुंच रही हूँ, जब तक मैं पहुंच जाऊँ संजीव को ठीक रखो. मैं यहाँ पे पहुंची, शुक्राना गुरुजी का, संजीव ठीक हो गए, संजीव घर आ गए. उन दिनों के अंदर मेरे को, मैं पहले कभी किसी पंडितों के चक्रों में नहीं पड़ी थी, क्योंकि आई यूज्ड टू बिलीव इन साईं बाबा. मुझे लगता था कि बाबा ही मेरे सब कुछ हैं. एंड या बिफोर आई फॉरगेट, मैं संजीव को बाबा के पास ले जाना चाहती थी, शिरडी मंदिर, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था 94 में. पर आई थिंक बाबा एंड गुरुजी को, उनको पता ही था कि मैं नहीं जा सकती और संजीव नहीं जा सकते. मुझे नहीं पता था. आई थिंक आई वाज टोटली एट डिनायल कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ के अंदर. आई जस्ट डिडंट वांट टू एक्सेप्ट इट.
लेकिन गुरुजी को पता था। मेरे घर से अबाउट नॉट इवन हाफ अ माइल 5 मिनट्स अवे साईं बाबा का मंदिर खुल गया। जय गुरु जी। एंड आई वाज लाइक द हैप्पीएस्ट पर्सन कि मैं संजीव को मंदिर तो ले जा सकती हूँ, मंदिर में मत्था तो टेक सकते हैं। मैं मंदिर में मत्था, मेरे घर के पास ही था, तो जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी मैं भागा करती थी मंदिर में ही, साईं बाबा के मंदिर लेके मत्था टेकने के लिए। मंडे के एक्सीडेंट के बाद मैंने मंडे और थर्सडे के फास्ट भी शुरू कर दिए थे। आई डोंट नो व्हाई, आई गेस गुरुजी वाज गाइडिंग मी एट दैट टाइम और साईं बाबा वाज गाइडिंग मी, बट आई वाज कीपिंग द फास्ट। देन 19 के अंदर नो सॉरी 15-16 के अंदर जब मैं वापस आई हूँ, तो गुरुजी ने आई गेस मुझे अपनी शरण में ले लिया था, लेकिन मुझे आज्ञा नहीं थी कि अभी मैं उनके बड़े मंदिर में भी जाऊं या कोई सत्संग भी अटेंड करूं। मेरे पास कोई उनका स्वरूप भी नहीं था, मैं जो इंडिया में देख के आई थी वही था, उन्हीं की दैट पिक्चर वाज इन माय माइंड। बट मेरे पास कोई स्वरूप नहीं, ना मेरे फोन पे था ना कुछ था। मेरे फोन पे साईं बाबा की फोटो थी, लाइक अ स्क्रीन सेवर। हमेशा मैं जब भी जाती थी मत्था टेकती थी बाबा को फोन के ऊपर ही। एंड 16 के अंदर संजीव गॉट वेरी वेरी सिक अगेन, बट अगेन आई गेस हमें गुरुजी ने अपनी शरण में ले लिया था। तो 17 जनवरी के अंदर संजीव हैड अ मेजर सर्जरी बिकॉज इन्फेक्शन, तब 10-12 सालों के बाद जाके पता चला कि संजीव की बोन्स में इन्फेक्शन चली गई है हिप के अंदर। सो दे हैड टू डू अ मेजर सर्जरी एंड डॉक्टर्स ने कहा था कि वी डोंट नो हाउ डीप इट इज, बट दे डिड द सर्जरी। संजीव वाज ऑन द बेड अगेन। गुरुजी की कृपा, तब भी मैं जोड़ा करती थी हाथ गुरुजी को। मेरा बहुत दिल करता था सत्संग में जाने के लिए, बट आई गेस मुझे आज्ञा नहीं थी। गंगा आंटी का मैंने सुना था कि यहाँ पे गुरुजी का उनका होता है मंडे को। मैं बहुत लोगों से पूछा करती थी कि गुरुजी का यहाँ पे होता है, वो कहते गंगा आंटी का है, गीता गुलाटी आंटी। आई यूज्ड टू नो हर एज गीता गुलाटी आंटी, तो आई फाउंड आउट कि हर नेम वाज गंगा आंटी। सो आई सेड मुझे भी जाना है। तो आई थिंक मैंने उनको कई बार मैसेज भी किया था और समथिंग। शी सेड हाँ अनु, मंडे को होता है, कभी भी आ जाओ। लेकिन आई गेस ये गुरुजी की कृपा थी या गुरुजी का ही था कि आज्ञा नहीं थी मुझे, मैं हर मंडे भूल जाती थी। फिर मैं जब फेसबुक के ऊपर अगले दिन मिलती थी, ओ माय गॉड, मैं तो फिर भूल गई गुरुजी का सत्संग जाने के लिए। लेकिन आई गेस उनकी ब्लेसिंग्स थी हमारे साथ, वो हमारे को गाइड कर ही रहे थे। तो 2017 के अंदर पापा को कैंसर हो गया। अभी संजीव ठीक हो ही रहे थे, देन माय डैड गॉट कैंसर। वो भी थर्सडे को हमें पता चला था। तो it was like another, because Papa had been with me as my backbone. My parents had been with me since 2000 से वो मेरे साथ थे. They were helping me take care of my daughter and my kids. So Papa को cancer होना was because Sanjeev being sick, Shreya being handicapped, Manu was only normal person in my life. That's my son. So Papa was my backbone. उनकी guidance थी मुझे, उनका support था मुझे हमेशा पापा मम्मी का. पापा को कैंसर होना was like मेरी जमीन, मेरे पैरों के नीचे से एकदम से जमीन निकल गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। थर्सडे को पता चला, तो किसी तरीके से, जो कि स्लोन केटरिंग के अंदर कभी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है, तब भी मैं गुरुजी को हाथ जोड़ा करती थी, लेकिन मेरे पास कोई स्वरूप नहीं था गुरुजी का। तो थर्सडे को पापा को पता चला, हमें डॉक्टर ने बताया, वो भी एक्सीडेंटली उनके सीनियर सेंटर में सम डॉक्टर केम एंड ही सेड कि आपके मुंह में बहुत बड़ा कैंसर है, यू नीड टू सी ओरल सर्जन राइट अवे। वी गॉट द अपॉइंटमेंट ऑन सैटरडे स्लोन केटरिंग में, जो कि कभी अपॉइंटमेंट मिल ही नहीं सकती है, 1 महीने की वेटिंग है। नेक्स्ट थर्सडे वी वर इन स्लोन केटरिंग। डॉक्टर ने बोला कि दे हैव टू डू अ होल बॉडी स्कैन। You won't even believe it, Sangat ji. They did the body scan. They found out कि उनके lymph nodes में neck में सारा spread हो चुका है, because it was this big cancer in his mouth, पूरे मुंह में. So पूरा उनके lymph nodes में spread हो चुका है. मेरे को तो I was like कि that's it, that's the end of my world. And तब मैंने गुरुजी को बहुत अरदास करी थी, साईं बाबा को भी करी थी, और मैंने पापा को भी बोला था, मैंने कहा पापा चलो यहाँ पे गुरुजी की संग होता है, सत्संग होता है, तो हम मत्था टेक के आते हैं। तो पापा सेड कि मैं किसी गुरुओं पे विश्वास नहीं करता, तूने बाबा के मंदिर चलना है, हनुमान टेम्पल चलना है, चल, मैं चलूंगा, मैंने नहीं जाना किसी गुरु शुरू के मंदिर में। आई वाज लाइक कि गुरुजी माफ करो, बट आई वाज प्रेइंग फॉर हिम। संगत जी, वी टुक हिम फॉर बायोप्सी, लेकिन हमें लग रहा था कि दैट्स एंड, दैट्स इट, इसके बाद कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर्स ने कह दिया था कि स्कैन में पूरा उनको लिम्फ नोड्स में नेक में दिखाई दिया। वी वर प्रेइंग,
We went for his biopsy on Thursday. That again happened to be on Thursday. उन्होंने needles डाली थी पापा के neck में while he was awake. There was no sedation, nothing. They were poking needles. Shukrana Guruji ka. He didn't have any pain. They did the biopsy. Again, I was praying to Guruji all the time. And कहते हैं ना कि सुना था मैंने सत्संग संगत से, वो भी मैंने अभी recently सुना था, and which I got my answers now after I don't know many years. कि किसी को जरूरत होती है फैमिली के अंदर तो गुरुजी उनकी लाइफ भी बढ़ा देते हैं, गुरुजी उनको एक्सटेंड कर देते हैं उनकी लाइफ. आई थिंक गुरुजी को पता था कि मेरी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी हो रही है, तो गुरुजी ने मेरी लाइफ में पापा को लिम्फ नोड से लाइक द होल कैंसर वाज गॉन. इट वाज ओनली माउथ के अंदर. डॉक्टर ने फिर भी बोला था कि जब मैं सर्जरी करूंगा मुझे कुछ नहीं पता, अंदर जाके पता चलेगा, क्योंकि वी डोंट नो until we go in his mouth. I was again praying to Baba and गुरुजी को हाथ जोड़ रही थी मैं, और गुरुजी ने सर्जरी हुई पापा की. they were supposed to cut open his face like that, but they didn't even cut, क्योंकि पापा की रिक्वेस्ट थी कि मेरा मुंह मत, क्योंकि नर्व सारी कट जाएंगी. हाउ विल आई. पापा का उन्होंने सारा मुंह रिकंस्ट्रक्शन किया अंदर से. he didn't have teeth, he doesn't have teeth on the right side, he cannot eat, but थोड़ा सा मुंह उनका हो गया, deepened हो गया, deformed हो गया, but thank God, शुक्राना गुरुजी का, he was fine. He was, even doctor said that कि we don't know, it's a miracle, but thank God, शुक्राना गुरुजी का, he was fine. लाइफ यहीं पे एंड नहीं होती है गुरुजी, संगत जी. I guess गुरुजी was taking my परीक्षा all these years. I think वो मुझे निचोड़ ही रहे थे. वो मेरे को, I guess मैं बहुत ही गंदा भांडा थी जो मुझे मांझ के सफा कर रहे थे. और he was, I guess, testing me in and out, कि मुझे ये नहीं पता होता था कि नेक्स्ट डे मेरी लाइफ क्या होगी. मैं कभी सोचती भी नहीं थी अपनी लाइफ के अंदर. मुझे ऐसे लगता था कि मेरे को सुबह उठो, संजीव को तैयार करो, श्रेया को तैयार करो, घर के काम करो. लाइक दैट वाज माय लाइफ एंड आई स्टॉप थिंकिंग, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ को टोटली सरेंडर कर दिया था कि जो होएगा अच्छा होगा. संजीव यूज्ड टू बी वेरी मैड, ही यूज्ड टू बी वेरी अपसेट कि जिस लड़की ने गाड़ी चलाई उसने मेरी जिंदगी खराब कर दी, बिकॉज ही वाज जस्ट 34 years old. एंड आई यूज्ड टू, अभी तक हमारी ये आर्ग्यूमेंट होती है. मैं कहती हूँ संजीव, मैंने कुछ उसका गलत किया होगा पिछले जन्म में, मे बी मैंने उसके हस्बैंड को मारा होगा, या मैंने उसके बच्चों को मारा होगा, या मैंने कुछ किया होगा कि शी केम इनटू आवर लाइफ, शी डिस्ट्रॉयड आवर लाइफ. हम कुछ नहीं कर सकते, हम भी बहुत गंदे इंसान होंगे. गुरु उस टाइम में बाबा को बोलती थी, मैं कहती थी, अभी भी मैं यही कहती हूँ, मैं कहती हूँ गुरु जी, आई गेस he is, we are paying for our deeds. संगत जी, मैंने जिंदगी के अंदर आप विश्वास भी नहीं करोगे कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, इवन फैमिली तक जो भी आते थे मुझे यही कह जाते थे आके, ए तेरे कर्मा दा फल है, जो तू कर्म किते हैं. तो मेरा एक क्वेश्चन उनसे होता था, ठीक है मैं तो बहुत गंदी इंसान थी, पर मेरी बेटी जो 2.5 महीने की थी उसने क्या गंदे कर्म किए हैं. मुझे लाइक नाउ आई एम गेटिंग दोज आंसर्स, बट इट वाज लाइक कि उस लड़की ने, उस बच्चे ने क्या गलत कर्म किए. मैंने उसको बहुत मांगा था. मांगते गुरुजी कहते हैं ना कि मांगना नहीं चाहिए, मनना चाहिए. मैंने उसको बहुत मांगा था कि उस टाइम मैं माता रानी को विश्वास करती थी, और मैं माता रानी को कहती थी कि माता मुझे बेटी चाहिए, कुछ भी कर ले मुझे बेटी चाहिए. लेकिन उन्होंने मुझे बेटी दी ना. बेटी देने के बाद क्या हुआ, मैंने मांगने के बाद उन्होंने क्या कहा, चल सेवा कर तो इसकी. तो ठीक है मैं सेवा कर रही हूँ, बट कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मे बी आई मेड अ रॉन्ग डिसीजन, मे बी आई मेड हर लिव, आई मेड माई हस्बैंड लिव फॉर अपने सेल्फिश रीजंस के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे को कुछ हो, मेरे हस्बैंड को कुछ हो. या दैट गिल्ट इज देयर इन मी, बट आई डोंट नो, मे बी अब मुझे जैसे गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई तो मुझे ऐसे आंसर्स मिलते हैं कि इट वाज, आई थिंक इट वाज आवर डेस्टिनी, कि उन्होंने जिंदगी में हमें प्रॉब्लम्स दी, बट उन्होंने साथ में, वो साथ साथ चले हैं मेरा हाथ पकड़ के, वो मेरे साथ साथ रहे हैं. उन्होंने मुझे गाइड किया है कि
किसी ने मुझे अगर हर्ट करने की कोशिश भी करी है, कुछ भी करा, तो ही वाज़ विद मी, मुझे पूरा फेथ था उनके ऊपर। तो जब गुरुजी मेरी लाइफ में आए 2015-16 में, जब मैंने पहली बार उनको मत्था टेका था, उसके बाद से माय लाइफ स्टार्टेड गेटिंग बेटर, जो कि संजीव का क्योर हमें नहीं मिल रहा था। वी फाउंड आउट कि उनकी बोन में इन्फेक्शन थी। ही स्टार्टेड गेटिंग बेटर, पापा बेटर हो गए। उसके बाद माय मॉम, मम्मी की नी में प्रॉब्लम हो गई कि शी कुडंट वॉक एट ऑल, शी कंप्लीटली बिकेम बेडरिडन। उनका हाई ब्लड प्रेशर जाना शुरू हो गया था बहुत ज्यादा। शी वाज लाइक कंप्लीटली एज इफ शी इज गोइंग टू डाई। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने बोला संजीव ठीक हुए, पापा ठीक हुए, अब मम्मी। अब मुझे आई हैड कंप्लीटली गिवन अप काइंड ऑफ, कि मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मेरी जिंदगी किस डायरेक्शन में जा रही है। मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। 2018 तक भी लाइफ, मैं किसी तरीके से चल रही थी लाइफ मेरी। आई वॉज लाइक डूइंग माई ड्यूटीज। मैंने कभी मुंह नहीं मोड़ा। एंड शुक्राना गुरु जी का कि उन्होंने मुझे हिम्मत दी, हमेशा मुझे हिम्मत दी है, मेरे साथ रहे हैं। मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है कि उन्होंने मुझे गाइड किया, उन्होंने मुझे कभी भटकने नहीं दिया। मुझे उन्होंने लाइक, ही वाज लाइक होल्डिंग माय हैंड्स, वॉकिंग थ्रू एंड थ्रू विद मी। देन मम्मी को जब हुआ, दैट्स व्हाट शैटर्ड मी। आई थिंक तुम अपने हस्बैंड को भी देख लेते हो सफर होते हुए। आई थिंक आई रियलाइज्ड इट देन कि मैंने संजीव को इतने साल तक देखा। आई टुक केयर ऑफ हिम, आई बीन टेकिंग केयर। मैं नहीं कर रही हूँ, माफी अगेन गुरुजी, माफी। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। आपने जो मुझे सेवा बख्शी है, संजीव की सेवा बख्शी है, श्रेया की सेवा बख्शी है, मैं वो ही कर रही हूँ। आपने जो मुझे सेवा बख्शी है, मैं सारी उम्र करने को तैयार हूँ। प्लीज मुझे माफ करो गुरुजी, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। या आप ही ने मुझे जो सेवा बख्शी है, मैं वही कर रही हूँ। तो मुझे था कि अपने पेरेंट्स को तुम पेन में नहीं देख सकते। आई कुड नॉट सी। मुझे ऐसे लगता था कि मेरी जिंदगी, मम्मी को मैं पेन में देती थी। मुझे ऐसा लगता था मैं क्या करूं, लाइक आई वांटेड टू डू समथिंग फॉर, बट मैं नहीं कर सकती थी। वो चल नहीं सकती थी, वो खाती नहीं थी। उनके कमरे की सफाइयां करी। आई फाउंड दीज मेनी बॉटल्स ऑफ ब्लड प्रेशर मेडिकेशन। वो दवाइयां नहीं खाती थी, छुपा के रखती थी। और शी यूज्ड टू हाइड हर पिल्स। और उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था कि मैं खाना पीना ही नहीं खाऊंगी तो मेरा ब्लड प्रेशर ठीक नहीं होगा। फिर वो भी गुरुजी की गाइडेंस से मैंने उनके कमरे में एक बारी गई तो मैंने इतनी सारी बोतलें देखी दवाइयों की। एंड देन आई वाज लाइक, ये हो क्या रहा है। देन आई वेंट टू हर रूम एंड डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर को दिखाया। तो 2019 में जुलाई 15 नहीं 14 जुलाई की बात है। इट वाज अ संडे। आई थिंक उससे एक हफ्ता पहले की बात है कि वन ऑफ माय फ्रेंड्स, नीना लांबा आंटी का मुझे टेक्स्ट आता है आउट ऑफ द ब्लू। शी जस्ट टेक्स्ट मी कि दिस संडे मेरे घर में गुरुजी का कीर्तन एंड आई वुड लाइक यू टू कम। मेरे को तो लगा कि जैसे आई जस्ट फाउंड, मुझे लाइक आई वाज वेटिंग फॉर दिस, कि मुझे कहीं से मुझे गुरुजी के कीर्तन में जाना था। संगत जी, मुझे लाइक क्रेविंग हो रही थी कि मुझे जाना है गुरुजी के। तो मुझे आई वाज फीलिंग सो ब्लेस्ड कि मुझे गुरुजी ने बुलाया, किसी ने मुझे बुलाया गुरुजी के सत्संग के लिए। मैं गुरुजी के सत्संग में प्यार, उस दिन में हमेशा मुझे लगता था मैं इस बार भी ना भूल जाऊं। मैं सुबह सुबह गई, सुबह सुबह जाके फ्लावर्स लाके आई जस्ट ब्रॉट देम कि मैं भूलूं ना, मेरे सामने चीज पड़ी। और संजीव माय हस्बैंड, यूजुअली वो कभी मुझे याद नहीं कराते, बट दैट डे गुरुजी उनके थ्रू मुझे याद करा रहे थे कि तूने आज सत्संग में जाना है, तूने आज सत्संग में जाना है, सो कीर्तन पे जाना है। मैं उस दिन गई तैयार होके गुरुजी के, लाइक यू नो आई वाज वेयरिंग अ येलो सूट एंड आई वाज लाइक तैयार होके चलो गुरुजी के चलते हैं। बट रास्ते के अंदर मैं साईं बाबा से बात करती रही पूरा टाइम गाड़ी के अंदर। मैंने कहा बाबा मुझे नहीं पता, मैं तो आई जस्ट लव यू। आपने इतने साल तक आप मेरे साथ रहे हो, आप मुझे गुरुजी की तरफ डायरेक्ट कर रहे हो, आप ही कर रहे हो। मैं चीटिंग नहीं कर रही आपको, आप ही मुझे डायरेक्ट कर रहे हो गुरुजी के पास जाने के लिए। मैं वहां पे पहुंची, संगत जी, मैं वहां पे गुरुजी के वहां पे पहुंची। आई कंप्लीटली वेंट ब्लैंक। इट वाज लाइक कि जैसे हेवन में होते हैं। गुरुजी ने येलो चोला पहना हुआ था। वहां पे बैठ के मैं इतना रोई कि इट वाज लाइक देयर इज नो टुमारो। आई वाज लाइक, मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। मुझे उनकी बाजू के ऊपर इधर चोले के यहाँ पे सिर्फ साईं बाबा दिख रहे थे। पूरा टाइम मैं साईं बाबा को देखती रही और मैं रोती रही। जो उनके सत्संग जो शब्द भी चल रहे थे, इट वाज मैं ही तेरी माँ, मैं ही तेरा प्यो, और जो भी जिंदगी में होता ही है। आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट वर्ड्स, बट इट वाज लाइक आई वाज फीलिंग कि वो मेरे लिए थे सारे। और मैं बहुत रो रही थी।
उसके बाद हम लोग सारे बैठ के बात कर रहे थे, मेरे फ्रेंड्स और मैं, सब खत्म हो गया था कीर्तन एंड संगत सारी, आई थिंक दे वर हैविंग द लंगर प्रसाद, और हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं एंड माय फ्रेंड्स वर टेलिंग मी कि क्या हाल है, यू नो, एंड आई वाज कंप्लीटली शैटर्ड, रोई हुई थी मैं, लाइक मेरे को लग रहा था कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, मम्मी बीमार, पापा बीमार, संजीव, कुछ ना कुछ लाइफ में चल रहा था। एंड देन आई, अभी हम बात कर ही रहे थे कि मम्मी के साथ ऐसे है कि तू, यू जस्ट, व्हाई डोंट यू गेट अ बिगर हाउस और व्हाई डोंट यू गेट अ मेड, लिव इन मेड। मुझे था कि मैं संजीव के लिए जब भी एड रखती थी, नर्स रखती थी, हमेशा संजीव को इन्फेक्शन, बिकॉज ही हैज अ सुपर प्यूबिक ट्यूब एंड ही हैज अ ट्रेक, ओपन ट्रेक है, तो जो एड जो नर्सेज आती थी वो हमेशा संजीव को इन्फेक्शन दे जाती थी। सो फॉर लाइक ऑलमोस्ट, अब हो गए होंगे लाइक 20 years, 27 years एक्सीडेंट हो गए, सो ऑलमोस्ट लाइक 25 years, 24-25 years से तो मैं ही ध्यान रख रही हूँ, क्योंकि आई जस्ट गॉट रिड ऑफ द नर्सेज बिकॉज इट वाज, ही वाज गेटिंग वेरी सिक, सो आई सेड फॉरगेट इट, मैं ही कर लूंगी सारा कुछ। एंड देन, तो दे वर टेलिंग मी दिस, तो आई सेड कि मैं को कुछ नहीं करना, मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है मेरी लाइफ के अंदर, मेरे को हेल्थ में कैसे रखूं घर के अंदर, क्योंकि कोई ना कोई इन्फेक्शन आ जाती है, बिकॉज श्रेया इज ऑल्सो सेंसिटिव एंड संजीव इज ऑल्सो, तो मैं कैसे हेल्प रखूं। उसी टाइम पे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था बड़ा सा, वहां से, बिलीव इट और नॉट, वहां से हम, मैं रो रही हूँ और सारे बात कर रहे हैं, वहां से गुरु जी की स्वरूप के वहां से आवाज आई, वाहे गुरु बोलो, वाहे गुरु, वाहे गुरु बोलो, वाहे, दो बारी। एंड एवरीबडी वेंट क्वाइट कि ये क्या हुआ। सबने जाके देखा स्वरूप के पास से, किसी ने पूछा कि तुमने टेप रिकॉर्डर ऑन किया, कुछ किया, किसी ने कुछ नहीं ऑन किया था संगत जी। इट वॉज लाइक, मुझे ऐसे लगा कि गुरु जी कह रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। सो आई वॉज लाइक, आई फेल्ट ब्लेस्ड। उसके बाद एक दो दिन के बाद गुरु पूर्णिमा थी, वहां से मत्था टेक के घर आई। गुरु पूर्णिमा पे भी मेरे को, आई गेस, गुरु जी का फिर से बुलावा आया कि मुझे जाना चाहिए। फिर भी मैं बड़ी खुशी खुशी गई वहां पे, अपना अगेन नया सूट निकाला, क्योंकि गुरु जी के सब कहते थे तैयार होके जाना चाहिए। मैं गुरु जी के वहां पे गई, फिर मैं साईं बाबा से बात करती हुई गई कि बाबा आप मुझे फिर से भेज रहे हो, मैं आपको चीटिंग नहीं कर रही हूँ, बिकॉज आई वॉज गिल्टी, मुझे दिल में गिल्ट था कि मैं बाबा को छोड़ के मैं गुरु जी के पास जा रही हूँ। बट ये तो गुरु जी की प्लानिंग थी, मुझे नहीं पता था, मुझे तो यही लग रहा था कि आई वॉज चीटिंग ऑन बाबा, बट आई गेस बाबा वॉज गाइडिंग मी। वहां पे पूरी पार्किंग लॉट फुल थी, बट गुरु जी ने मेरे लिए लाइक एक स्पॉट राइट बाय द डोर खाली था, वहीं पे गाड़ी खड़ी करी, मैं अंदर गई। पहली बार लाइक इतना बड़ा सत्संग मैं अटेंड कर रही थी, वहां पे पहुंची, मत्था टेका, तो इट वाज लाइक आई वाज अमेज्ड कि इतनी खुशबू, इतनी खुशबू, गुलाबों की खुशबू ही खुशबू। मुझे नहीं पता था उस टाइम पे कि खुशबू का मतलब है कि गुरुजी वहां पे हैं। एंड माफी गुरुजी अगेन, गुरुजी लाइक मुझे वो चीजें दिखा रहे थे कि मुझे नहीं पता था, मुझे आई वाज लर्निंग, आई वाज लाइक, जैसे होता है ना कि बंदा एक किंडरगार्टन में होता है, अभी कनेक्ट हो रही थी मैं गुरु से, पर गुरुजी की ब्लेसिंग थी मेरे साथ। मत्था टेका गुरुजी को, गुरुजी के वहां पे पीछे बैठी मैं, इतना अच्छा सत्संग हो रहा था, एंड आई वाज क्राइंग अगेन क्राइंग। फिर गुरुजी के पास, वहां पे गुरुजी की बाजू के ऊपर ही जो उनका चोला था, चोले के ऊपर फिर मैं साईं बाबा देखती रही और मैं सबको बोलती जा रही थी, मैंने कहा साईं बाबा का स्वरूप है वहां पे। जितने भी आंटी से वहां पे कहते नहीं हमें नहीं दिखाई दे रहा, मैंने कहा है वो देखो वहीं पे ही है। आई टुक पिक्चर्स ऑल्सो उस टाइम पे, बट आई डोंट नो वेयर दोस पिक्चर्स आर राइट नाउ इन माय अदर फोन। सबको बोल रही हूँ नहीं है, बैठी हुई थी, बैठ के खड़ी हुई, मेरा सूट फट गया सारा। सो वन ऑफ द आंटी शी केम एंड टोल्ड मी, आंटी आपका सूट फटा हुआ है, तो आपको पता है? तो मैंने देखा तो मेरे को, मैंने बोला मैं तो नया सूट पहन के आई थी, आई डोंट नो गुरुजी ने मेरे कर्म काटे हैं या क्या है। सो वी आस्क्ड वन ऑफ द आंटीज ओवर देयर, तो उन्होंने मुझे बोला कि गुरुजी खुद ही जवाब देंगे। तब भी मुझे नहीं पता था संगत जी कि गुरुजी कैसे जवाब देंगे, क्या देंगे। आई गेस मेरा कष्ट काट रहे थे, या उनको, जहां तक कि मुझे यही लग रहा है कि वो मेरे कष्ट ही काट रहे थे। तो मुझे उन्होंने, जब मैं नीना लामा आंटी के घर में गई थी, तो स्वीटी बाबा आंटी ने मुझे बड़े मंदिर का जल प्रसाद दिया था थोड़ा सा। उनको पता था कि संजीव तब 3-4 घंटे से ज्यादा व्हील चेयर पे बैठ नहीं सकते थे, क्योंकि उनके बट में ब्लीडिंग शुरू हो जाती थी, वुंड खुल जाता था, और 10 दिन तक उनको बेड में लेटना पड़ता था। अगर वो 4 से 5 घंटे भी बैठ गए, 2-3 घंटे बैठते थे व्हील चेयर पे, देन ही हैड टू बी इन द बेड। तो एंड संजीव वाज ऑलवेज कंप्लेनिंग कि मेरी ये क्या लाइफ हो गई है, अच्छा भला मैं थोड़े घंटे बैठ सकता था, मैं वो भी नहीं बैठ सकता
भला किस चीज में तू मेरे को भला बोलती है? एक्सीडेंट हुआ बोलती है कि इसमें भी कुछ भला होगा, क्या भला होएगा? श्रेया को चोट लगी तब भी तू ये बोलती रही कि भला होएगा, क्या भला हुआ? मुझे नहीं पता संगत जी कि मैं क्यों बोलती थी ऐसे, और मुझे अभी तक उस चीज का नहीं पता कि क्या भला होगा। मे बी गुरु जी वॉज कनेक्टिंग अस विद हिम, मे बी ही वॉज मेकिंग मी अ बेटर पर्सन, आई डोंट नो। आई गेस गुरु जी ही उस चीज का जवाब देंगे मुझे, या मेरे को होगा भी तो मुझे, आई डोंट नो, आई माइट गेट एन आंसर थ्रू सम संगत जी और सम कीर्तन, जो कि मिले भी होंगे जवाब मुझे, मे बी राइट नाउ, आई डोंट नो। माफ करना गुरु जी अगेन। जय गुरु जी। वहां से मैं जल प्रसाद लेके आई, तब तक मेरे को गुरुजी की कृपा का इतना पता नहीं था, तो मैंने संजीव के पट में लगाना शुरू किया, जो कि इतना बड़ा वूंड खुल जाता था, लाइक इट यूज टू बी दिस बिग, एंड जैसे किसी ने कट कर दिया, और उसको हील होने में, इट यूज टू बी ब्लीडिंग, उसको हील होने में 10 दिन लग जाते थे, 2 हफ्ते कई बार लग जाते थे। तो मेरे जैसा इंसान नलायक, अगेन माफ करना गुरुजी, मैंने गुरुजी को चैलेंज भी किया। मैंने बोला गुरुजी अगर आप हो तो इसको कल तक ठीक करके बताओ जल प्रसाद से। एंड बिलीव इट संगत जी, अगले दिन जब हम सुबह उठे सो के, संजीव का वूंड वाज लाइक ब्रांड न्यू स्किन। जय गुरु जी। गुरु जी ने बताया, गुरु जी ने दिखाया, लेकिन फिर उसके बाद जब मैंने सत्संग ये भी सुना था कि मांगते नहीं है, मानते हैं, ये मेरी गलती थी। दिस वाज रॉन्ग कि मैंने गुरु जी को चैलेंज किया, एंड गुरु जी से मांगा मैंने कि संजीव को ठीक कर दो, विच वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग संगत जी। हमें मांगना नहीं चाहिए, हमें ये बोलना चाहिए कि ब्लेस करो, संजीव को ब्लेस करो। उसके बाद उस टाइम तो गुरुजी ने मुझे प्रूव कर दिया कि वो हैं, उन्होंने संजीव को ठीक कर दिया। लेकिन अगेन हफ्ते 10 दिन के बाद संजीव का फिर से वूंड खुल गया, फिर से ब्लीडिंग शुरू हो गई। मैंने कहा गुरुजी आपने तो कहा था कि ठीक कर दोगे इसको जल प्रसाद लगाने से, बट देन अगेन आई वाज लिसनिंग टू अ सत्संग, कोई मैं व्याख्या सुन रही थी और समथिंग, एंड देन आई हर्ड कि गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए। तब मैंने गुरुजी को ब्लेसिंग मांगी, मैंने कहा गुरुजी मुझसे गलती हुई है, संजीव को ब्लेस करो, संजीव को ब्लेस करो। मैं यही मत्था टेकती थी, सुबह शाम संजीव पे जल प्रसाद लगाती थी और थोड़ा सा संजीव को पिलाती भी थी। बिलीव इट और नॉट संजय जी, वो दिन 2019 एंड 2021, अभी तक संजीव कैन सिंग बाय गुरुजी's grace. Sanjeev can sit in his wheelchair for 10 hours, 12 hours, और वो लाल भी नहीं होता, खून भी नहीं निकलता, क्योंकि गुरुजी ने संजीव को अंदर से हील किया, ब्लेस किया। आई थिंक इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई हो ही नहीं सकती कि जो इंसान पिछले 2009 से लेकर के 2019 तक सफर ही सफर कर रहा था, जिसकी जिंदगी में हमें ये नहीं पता था कि अगला दिन वो जिएगा भी कि नहीं। His heart rate used to be like 20. His body temperature used to be 80. He used to become septic. Like दो हफ्ते के अंदर, third week, fourth week, and we had to rush him to the hospital. और वो इंसान अब 12-12 घंटे, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी ने संजीव को ठीक किया। अब तक संजीव ठीक है। उसके बाद जब मैं वहां से कनेक्ट होके गुरुजी को वहां से मिलके आई, गुरुजी से मेरा थोड़ा विश्वास हुआ, थोड़ा सा कनेक्शन होना शुरू हुआ। 2019 के अंदर ही मैं इंडिया जाने का मेरा प्लान बन रहा था कि कुछ पेपर वर्क साइन करने थे, और मेरी फ्रेंड की बेटी की शादी भी थी। तो मैंने संजीव को बोला मैं 1 हफ्ते के लिए होके आती हूँ, कुछ काम भी करके आ जाऊंगी 1 हफ्ते के लिए, बट एड नहीं थी। तो संजीव के लिए एड मिलना भी कौन सा आसान होता है कि मेरे पास, बिकॉज आई डोंट हैव अ रेगुलर, आई हैव टू लुक फॉर समबडी। जो एड थी संजीव के पास पहले, जो मैं जाया करती थी इंडिया, वो एड रिटायर हो गई थी, अब कोई था ही नहीं मेरे पास ध्यान रखने के लिए। तब मैंने गुरु जी को हाथ जोड़ा, मैंने कहा गुरु जी अगर आप चाहते हो कि मैं इंडिया जाऊँ तो आप ही एड दिला दो मुझे। तो गुरु जी ने एक नहीं 3 एड मुझे दिलाई, और मेरा रातों रात प्लान बना और मैं इंडिया चली गई। इंडिया जाके पहला दिन संडे को पहुंची हूँ, मैं पहले से ही मन में सोच के गई कि गुरुजी मैंने मंडे को ही आपको मिलने आना है, दैट्स इट, मैंने आना ही है आपको मिलने के लिए। गंगा आंटी ने भी मुझे नंबर्स दिए थे किसी को कनेक्ट करने के लिए वहाँ पे, तो मैंने कॉल भी करी थी। सम अंकल ही, शी हैड गिवन मी द नेम्स एंड द फोन नंबर। तो मैंने वहाँ पे पहुँच के भी फ़ोन किया था कि मैं आ रही हूँ बड़े मंदिर में। मंडे को ही मैं बड़ा मंदिर गई मिलने के लिए। अगेन दैट वाज लाइक कि मैं बता ही नहीं सकती कि मैं कहाँ पे पहुंच गई थी। इट वाज लाइक हेवन।
मैं घर से तो बहुत कुछ सोच के गई थी कि मैं गुरुजी को ये बोलूँगी, गुरुजी को वो बोलूँगी, गुरुजी से ये प्रार्थना करूँगी, ये करूँगी, लाइक बहुत कुछ बोलूँगी। लेकिन मैं जब बड़े मंदिर में पहुँची, पहले तो बाहर ही छोटा-सा गाय का बछड़ा था, नंदी के रूप में, एंड माय बुआ सेड कि ये कभी होता है, कभी नहीं होता, बट यू आर लकी कि आज तुझे दर्शन हो गए हैं। वहाँ से मिलके जब मैं अंदर गई, बस मैंने अभी गणेश जी के वहाँ पे पहुँची थी, समाधि तक पहुँची थी, मेरा रो-रो के बुरा हाल, मेरा लाइक आई जस्ट डिड नॉट नो वेयर आई एम। मुझे लग रहा था कि पता नहीं मैं कहाँ पे हूँ, क्या हो रहा था मेरे साथ, मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता मुझे। मैं वहाँ पे गई, आई जस्ट केप्ट फॉलोइंग, जिन्होंने मुझे जल प्रसाद दिया, मत्था टेका, गुरुजी के वहाँ पे अंदर जाके मैं बैठना चाहती थी, मैं बहुत रोई अंदर जाके। इट वाज़ लाइक कि मैं भगवान के पास पहुँच गई हूँ। मेरे को लाइक किसी ने अपनी शरण में लिया है कि मैं अपने, जैसे होता है ना कि तुम अपने माँ-बाप के पास पहुँच जाते हो, वैसे मैं पहुँच गई। और आई कुडन्ट आस्क एनीथिंग, मैं कुछ माँग नहीं सकी, कुछ बोल नहीं सकी। आई वाज़ जस्ट सिटिंग देयर एंड क्राइंग, लुकिंग एट गुरुजी के वहाँ पे स्वरूप को, गुरुजी के वहाँ पे बड़े मंदिर के अंदर ही मुझे जगह मिली, अंदर राइट देयर बाय हिज गद्दी के पास ही, वहीं पे बैठ के मैं बैठी और मैं आँखें नहीं खोल रही थी। मैंने बोला अगर मैं आँखें खोलूँगी ना, तो मुझे सेवादार बोलेंगे कि बाहर निकलो, आपको जाना है, क्योंकि बहुत संगत आ रही थी और वो सबको उठा रहे थे। मैं आँखें बंद करके बैठी रही कि मुझे कोई ना बोले, कोई ना बोले, बट मुझे नहीं पता था ये गुरुजी की मर्ज़ी थी, जो कि मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं अपनी तरफ से स्मार्ट बन रही थी कि मैं आँखें बंद करके बैठूँगी और गुरुजी मुझे बाहर नहीं, कोई मुझे सेवादार बाहर नहीं निकालेगा। बट आई गेस इट वाज़ गुरुजी, ही लेट मी सिट देयर फॉर सम टाइम। आई थिंक मैं आधा घंटा बैठी होंगी वहाँ पे, बातें मन में रोती जा रही थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। बाहर आए, समोसा प्रसाद खाया, चाय प्रसाद खाए, पिया लिया, मत्था टेका, बाहर से गुरुजी के वहाँ पे स्वरूप मिल रहे थे, तो आई वांटेड सम स्वरूप, बड़ा स्वरूप मिल रहा था। मुझे छोटा स्वरूप चाहिए था। मैं मन में सोच रही थी कि इन्होंने मुझे छोटा स्वरूप नहीं दिया, कहीं से मुझे मिलेगा, पर अब कहाँ मिलेगा? क्योंकि वहाँ से तो मैं निकल गई थी। तो आई टोल्ड माय बुआ, तो मेरी बुआ सेड कि चल अगली बार तू जाने से पहले आएगी तो फिर तू आके ले लेना। तो मेरे मन में था नहीं, मुझे छोटा स्वरूप चाहिए था पर्स में रखने के लिए, अभी क्योंकि मैं यहाँ पे 2 हफ्ते थी दिल्ली में। विश्वास करो संगत जी, एक गाड़ी, वो जो कार सेवा होती है, गाड़ी के अंदर जो अंकल आगे गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने सिर पे पटका पहना हुआ था। मेरे मन में था, ये मैंने गाड़ी में बैठ के नहीं बोला था, मैंने जब हम वहाँ से लाइन में आते तब मैंने बुआ को बोला था अपनी। उसके बाद हम गाड़ी में आके बैठे, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं चुप थी। अचानक से वो सेवादार अंकल बोलते हैं, "ये लो आपके लिए।" छोटे वाले स्वरूप, कैन यू बिलीव इट? एंड आई वाज़ लाइक जय गुरुजी। वो कहते हैं आपको जितने चाहिए आप ले लो। मैंने कहा आर यू श्योर मैं 2-3 ले सकती हूँ? कहते हैं हाँ, हाँ, आप जितने लो ये आपके लिए ही हैं। एंड कैन यू बिलीव इट, गुरुजी कितनी छोटी-छोटी बातें सुनते हैं। मेरे जैसा इंसान जो कभी गुरुजी पे विश्वास नहीं करता था, जो मज़ाक उड़ाता था, गुरुजी ने एक बार शरण में लिया। गुरुजी ने, जब मैंने उनके दर्शन किए, जब मैंने उनको मत्था टेका फिज़िकली, आई गेस मैं पहले से कनेक्टेड थी गुरुजी के साथ। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तब से वो मेरे साथ में थे, बट अब जब मैंने उनको फिज़िकली मत्था टेका था, आई थिंक ही न्यू व्हाट आई वांटेड बिफोर इवन आई थॉट अबाउट इट। मैं, मेरे मन में जो सवाल थे, जो कुछ भी थे, गुरुजी ने वो काम मेरे उस ट्रिप में पूरे कराए। मैं कुछ भी कर रही थी, अगर मुझे ट्रैवल भी करना था, तो मैं गुरुजी को हाथ जोड़ती थी, गुरुजी अगर मेरा जाना है, अगर मुझे चंडीगढ़ जाना है या मुझे कहीं पे भी करना है, कुछ भी करना है, आप अगर चाहते हो तो मेरे को करा दो। आप ही करोगे मेरे लिए, आप ही मेरे ट्रिप में जो कर रहे हो। मुझे वो जवाब मिले उस ट्रिप के अंदर कि जो कि मुझे, मैं ज़िंदगी में नहीं कभी सोच सकती थी। मैं रो-रो के पागल हो रखी थी कि मैं भाग-भाग के क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी के अंदर, बट उन्होंने मुझे वो जवाब दिलाए। जो वो चीज़ें, इन्फॉर्मेशन दिलवाई कि जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। आई केम बैक टू यूएस। ये पहला ट्रिप था संगत जी कि संजीव वाज़ नॉट सिक। मैं इंडिया रह के आई 2 हफ्ते। संजीव वाज़ फाइन। मुझे कोई आईसीयू से फ़ोन नहीं आया, कोई मुझे फ़ोन नहीं आया, नहीं तो मुझे यहाँ से दिन में 10 बार फ़ोन करते थे, पापा, मम्मी, संजीव कि मैं बीमार हूँ, मैं ये हो रहा है, वो हो रहा है। बट इस बार पहली बार हुआ संगत जी कि कुछ नहीं हुआ, संजीव वाज़ फाइन। मेरा लाइक इट वाज़ एन अमेज़िंग ट्रिप। मैं दूसरी बार इंडिया आने से पहले भी, मैं अमेरिका आने से पहले भी मैं गुरुजी के गई, लंगर प्रसाद खा के आई वहाँ से, जो कि मेरे को था कि मेरे को इस बारी मेरी जो फ़ेवरेट था मक्के की रोटी सरसों का साग, जो उस सीज़न में
नहीं मिलता, लेकिन मुझे वो भी मिला, मक्की की रोटी सरसों का जग, जो कि मेरा फेवरेट था। और मैं बुआ से, देख तेरे को गुरुजी ने ये भी खिला दिया। मैं वो भी खाया, वहाँ से गुरुजी के मैंने स्वरूप लिए सारे, फिर से दोबारा से स्वरूप लिए, बड़े वाले स्वरूप लिए। मैंने उनको बोला मैं नहीं अब जा रही हूँ, मुझे बड़े वाले स्वरूप देने के लिए। तो उन्होंने मुझे दिए, लॉकेट दिया, गुरुजी का जो भी प्रसाद था मुझे दिया उन्होंने। मैं लेके वापस आई यहाँ पे, गुरुजी की ब्लेसिंग्स। यहाँ पे आके मैं बहुत बीमार हो गई। आई थिंक आई प्रॉब्ली हैड कोविड, क्योंकि उस टाइम पे कोविड शुरू ही हुआ था। लेकिन मुझे गुरुजी का ये जल प्रसाद का तो मैं भूल ही गई थी। मैं इतना बीमार हो गई थी कि मुझे लगता था कि मुझे कोई बीमारी हो गई है। कोई एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। मैं संजीव को अगर मुँह धोती थी, मुँह धोने के बाद आके आधा घंटा लेट जाती थी, क्योंकि उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं संजीव को नहला भी सकूँ, कपड़े भी पहना सकूँ और व्हील चेयर पे भी बिठा सकूँ। मुझे 2-3 घंटे लगते थे संजीव को तैयार करके व्हील चेयर पे बिठाने में। देन मैंने उन दिनों में लॉकडाउन शुरू हो गया था एंड मैंने कभी ज़ूम पे नहीं किया था, तो गंगा आंटी ने मुझे लिंक भेजा था कि सत्संग शुरू कर। बिफोर इवन आई गो देयर, मेरे को जनवरी के अंदर अनु आंटी, मेरे पास टाइम है, आप मुझे बता देना अगर खत्म करना है तो आई कैन स्टॉप इट, आई कैन शेयर अनदर टाइम अगर लेट हो Aunty, रहा है तो। finish your thought, please. ओके, थैंक यू। सो आई वाज जनवरी के अंदर, पापा जनवरी, आई थिंक इट वाज सेकेंड वीक ऑफ जनवरी लास्ट ईयर टू 2020 के अंदर, मैंने पापा को बोला, मैं नहीं, घर में नहा धो के मैं मत्था टेक के गुरुजी को, यूजुअली मैं मत्था टेक के चली जाती थी। उस दिन पहला दिन था कि मैंने मत्था टेका गुरुजी को। मैंने कहा गुरुजी चलो ग्रोसरी करके आते हैं, डोसा भी खा के आएंगे, बिकॉज आई वाज मीटिंग माय फ्रेंड्स, लेकिन आप घर में भी यहाँ पे सबका ध्यान रखना। पहली बार पता नहीं मैंने क्यों बोला, संगत जी, मैं गई, मत्था टेका, चली गई, वापस आई दोपहर को, तो संजीव ने मुझे बोला, माय अंकल ही सेड दैट कि पापा से कुछ हुआ है, वो गिर गए हैं। कुछ आवाज आई थी बेसमेंट में, एंड माय बेसमेंट इज ऑल सीमेंट, नीचे देयर आर 13 स्टेप्स एंड नीचे सीमेंट फ्लोरिंग है। मैंने बोला पापा गिर गए, लेकिन पापा तो ठीक है, इसे नहीं तो पूछ किया। आई वेंट अपस्टेयर्स, मैंने पापा से पूछा, मैंने कहा पापा क्या हुआ आपको? तो पापा से, तेरे को किसने बताया? मैंने कहा कि मुझे संजीव ने बोला कि कोई आवाज आई थी। इसे जन्नू तो विश्वास करेगी क्या हुआ? मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ रहा था बेसमेंट में, ही मस्ट हैव गॉन टू गेट समथिंग, ही वाज ट्राइंग टू ओपन द डोर, पैर स्लिप हो गया, 13 स्टेप्स डाउन, ही फेल ऑन द फ्लोर। लेकिन गुरुजी ने उनको अपने हाथों में लेके बचाया। ही इज ऑन ब्लड थिनर, he is a heart patient, he is diabetic, he has a lot of other health issues, he had cancer as I told you earlier. पापा को हल्की सी में भी ब्रूज आया बैक में और एंकल में, नो कट्स, नो ब्लीडिंग। आई टुक हिम टू द हॉस्पिटल, उन्होंने एक्सरे किया, वो भी डर गए डॉक्टर्स भी कि ही इज ऑन अ ब्लड थिनर एंड इंटरनल ब्लीडिंग हो गई होगी। इवन द डॉक्टर सेड दैट कि यू हैव somebody watching over you, कि तुम बच गए। कोई बच्चा भी अगर गिर जाए 13 सीढ़ियाँ ऊपर से नीचे तो वो बचता नहीं है। सो वी डोंट नो व्हाट इट इज, एंड शुक्राना गुरुजी का। मैंने फोन उठाया, मैंने राइट अवे गंगा आंटी को फोन किया। मैंने कहा गंगा आंटी, आपको पता है क्या हुआ पापा के साथ? तो आई थिंक वैलेंटाइंस डे का दे हैड अ सत्संग एंड आई वांटेड टू शेयर। तो मैंने कभी सत्संग शेयर नहीं किया था, तो शी सेड कि तू आ जा वहाँ पे। और उस दिन पापा का बर्थडे था, तो आई सेड मैं आना चाहती हूँ 15 फरवरी को। सो आई वेंट टू दिस आंटी इन सनी अंकल के घर में इन क्वींस। आई वेंट देयर, मैंने शुक्राना किया गुरुजी का, एंड दैट्स व्हेन आई शेयर्ड सत्संग की पापा को गुरुजी ने कैसे लाइफ दी है। संगत जी, अगर ये तो सुना ही था, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि गुरुजी को पता है कि मुझे पापा की कितनी ज़रूरत है। वो पापा की लाइफ एक्सटेंड करते जा रहे हैं। उन्होंने पहले कैंसर ठीक किया, अभी ऊपर से नीचे गिराया, उसके बाद उनको डेमेंशिया, वो घर से चले गए। गुरुजी उनका हाथ पकड़ के लेके आए, उनको घर से वापस लेके आए, घर से, वहाँ से 2-3 इंस्टेंसेस हो गए थे, बट अभी गुरुजी ने उनको कैसे बचा के रखा हुआ है घर के अंदर, कैसे उनकी ब्लेसिंग्स चल रही हैं मेरे ऊपर कि मैं बता ही नहीं सकती। सब कुछ ठीक ठीक चलता जा रहा है, शुक्राना गुरुजी। मैं जितना, मेरी तो जिंदगी के अंदर हर दिन मैं सोचती पहले हूँ, चीजें बाद में होती हैं। मुझे कई बार अपने थॉट से ही डर लगता है। लाइक मेरा एक्सीडेंट था, आई हैड फोर सीन कि एक्सीडेंट होगा, मैं ऐसे गिरूंगी बाहर विंडशील्ड से, 85 माइल्स की स्पीड से चलती हुई गाड़ी से, आई वाज थ्रोन आउट एंड आई हैड सीन द टनल। गुरुजी ब्रॉट मी बैक। आई गेस मेरे को सेवा देनी थी उन्होंने। तो आई वुड जस्ट से कि गुरुजी से हम जो मांगते हैं, हम जो सोचते हैं,
सब उनका ही है करा हुआ, सब वही करते हैं। मेरे को घर मन में वही सोच ही डालते हैं, मन में वही ख्याल देते हैं। कितनी बार मन में आता है, मैं यही कहती हूँ अभी भी, आई थिंक गुरुजी मुझे अच्छा इंसान बनाने में अभी भी वो मुझे अंदर से मांझ रहे हैं, मुझे अच्छा इंसान बना रहे हैं। क्योंकि मेरे दिमाग में अभी भी आता है, मैंने तो ये कर लिया, मैंने ये काम कर लिए, मैंने ये पेपर वर्क कर लिया, गुरुजी अब आप करो। एब्सोल्युटली नो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती। ये सब गुरुजी ने ही करवाया, अगर वो नहीं करवाएंगे तो मैं कैसे करूं? संगत जी, अब विश्वास करोगे, पिछले 27 सालों से मैंने जितनी बार भी सोचा कि मैंने मूव करना है, मैंने घर लेना है, मैंने घर खरीदना है, घर बेचना है, मैंने कुछ नहीं करा। पापा को कैंसर हुआ, संजीव बीमार हो जाते थे, मम्मी श्रेया, कुछ ना कुछ लगा रहता था। बट संगत जी, अब गुरु जी की कृपा से चीजें, एवरीथिंग इज गोइंग इनटू पॉजिटिव डायरेक्शन। जो कि सत्संग बन रहा है, विच आई शेयर व्हेन द सत्संग इज डन, बट गुरु जी की कृपा बनी रहे। आई वोंट टेक मच टाइम ऑफ योर्स, बिकॉज बोलने को तो बहुत कुछ है, सोचा तो बहुत कुछ था बोलने के लिए। और एक चीज और बोलूंगी संगत जी, मैंने आज रियलाइज किया, आज या कल में रियलाइज किया ये चीज, कि मैं, आई थिंक मैं सत्संग गुरु जी के साथ अपने मन ही मन में करती रहती हूँ, विच आई डेंट रियलाइज इट। क्योंकि मैं क्या करती हूँ, जब गाड़ी चला रही होती हूँ तो मैं बोलती रहती हूँ कि ये हुआ मेरी जिंदगी में। गुरुजी को सामने बैठे होते हैं और मैं उनको एक्सप्लेन कर रही होती हूँ कि ये हुआ मेरी लाइफ में, ऐसे हुआ, ऐसे करा था आपने, ऐसे करा था आपने, ये भी किया था आपने, ये भी किया था। सो आई गेस गुरुजी मेरे से सत्संग रोज ही शेयर करा लेते हैं, रोज ही मेरी जिंदगी में जो भी होता है मैं उनसे ही बातें करती रहती हूँ, कि जो कि मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करती हूँ। मेरे को लाइक, आप सोच भी नहीं सकते संगत जी कि गुरु जी, लाइक आई एम सो ब्लेस्ड। आई फील कि मेरे जिंदगी में मेरे जैसा आई थिंक कोई तुच्छ प्राणी होएगा, कि जो कि गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरी इतनी अच्छी किस्मत की मेरे को हाथ पकड़ा गुरु जी ने, मेरी जिंदगी में अच्छा ही अच्छा हो रहा है। मेरी जिंदगी के अंदर लाइक, ये कोविड की वजह से आई थिंक आई गॉट कनेक्टेड अगेन, क्योंकि उससे पहले मेरी लाइफ में क्या था, ये पर्स खरीद, वो पर्स खरीद, अपने आप को अवॉर्ड करती थी मैं कि हाँ मैं ये भी करती हूँ, अगर घर में सबका ध्यान रखती हूँ, चलो ये जूते भी खरीदो, ये पर्स भी खरीदो, ये भी करो। लाइफ के अंदर भागती जा रही थी लाइफ, बट क्या हो रहा था लाइफ के अंदर, कनेक्शन नहीं हो रहा था। सो कोविड की वजह से गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ना शुरू किया। व्याख्या सुनाते हैं, व्याख्या के अंदर जरूर आंसर्स मिलते हैं। हर रोज एक व्याख्या सुनती हूँ। सुबह उठाते हैं वो मुझे अमृत वेले के लिए, अपने आप ही आंख खुल जाती है, मुझे अलार्म से पहले ही मैं उठ जाती हूँ अपने आप ही, 5, 5:30, 6 बजे। कभी बॉस्टन संगत हो रही होती है, उनका अमृत वेला हो रहा होता है, कभी कहाँ पे अमृत वेला हो रहा होता है, कुछ ना कुछ गुरुजी जोड़ते ही रहते हैं। शुक्राना गुरुजी, अगर मैंने कोई भूल चूक हुई है मुझे माफ करना। आप मेरे साथ रहो, मेरी यही अरदास है कि हर पेरेंट्स को, जिसके भी माँ बाप बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं, जो इनको मैं नहीं भी जानती, जो इस दुनिया में कहीं पे भी हैं, उन सबको अच्छी सेहत बख्शना गुरुजी। हम बच्चे हैं आपके, कोई भूल चूक हुई हो माफ करना। हर बीमारों को सबके साथ रहना, हर इंसान को गाइड करना राइट डायरेक्शन में। हम सबको आपकी जरूरत है, सबका हाथ पकड़ के अपना बच्चा समझ के माफ करना गुरुजी। कोई गलती हो उसे बख्शो, हमें बख्शो गुरुजी, बख्शो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। शुक्राना अनु आंटी फॉर लेटिंग मी शेयर माय सत्संग। शुक्राना गुरुजी।